Dear students, in the previous class we have started with the human digestive system. We know that digestive system is responsible for converting the complex substances into the complex macromolecules into the simpler forms which can be then absorbed by the cells of the intestine as well as by the stomach and all the different parts of digestive system. तो यहाँ पे digestive system का function होता है digestion, मतलब complex substances को simpler forms में convert करना, और ये simpler forms जो हैं they will be absorbed by the cells of the alimentary canal. Human digestive system includes two things, alimentary canal, and along with alimentary canal it contains associated alimentary glands. Associated glands जो हैं these are the glands which will be assisting with their secretions, मतलब उनके जो secretions होते हैं वो बहुत ही important होते हैं for the process of digestion. The alimentary canal is a long continuous tube which has two openings. Anterior opening was the mouth and the posterior one was known as anus. As there are two openings, human digestive system is a complete digestive tract with a mouth and an anus. Another thing is that the alimentary canal, it begins from the first part which is the mouth. Mouth क्या होता है? तो mouth जो है वो एक slit like opening है which is bounded by the lips on either side. मतलब दोनों तरफ क्या होता है, उसके lips होते हैं. तो lips जो होते हैं they are covered with skin on outer side and mucous membrane on inner side. And then after this mouth leads into a whole large cavity जिसे हम कहते हैं buccal cavity या oral cavity. ये जो buccal cavity होती है उसमें present होते हैं different regions. मतलब there is presence of a muscular structure जिसे कहते हैं tongue. There is presence of a hard structure which is the teeth, and the third thing present is the palate. In the previous class we have already started with the structure of teeth. हमने यहाँ पे तीन डेफिनेशन स्टडी की थी. फर्स्ट वाज थिकोडोंट. थिकोडोंट मतलब टीथ जो होते हैं when they are embedded in the socket like structures, right? Socket of the jawbone. तो उसे क्या कहा जाता है? It is called थिकोडोंट. सेकेंडली व्हाट इज डाइफियोडोंट. टीथ जो होते हैं वो हमारी लाइफ में दो बार डेवलप होते हैं. पहले होते हैं मिल्क टीथ और फिर आते हैं परमानेंट टीथ. सच एन अरेंजमेंट मतलब पहले मिल्क टीथ डेवलप होते हैं, देन एट एन एज ऑफ 5 और 6 इयर्स ये मिल्क टीथ जो होते हैं वो गिरने लगते हैं एंड देयर प्लेस इज टेकन बाय द परमानेंट टीथ. उसे क्या कहा जाता है? डाइफियोडोंट. सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेट ऑफ टीथ थ्रू आउट देयर लाइफ, उन्हें कहा जाता है मोनोफायोडोंट. थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस वाज, मतलब एक तो थिकोडोंट की डेफिनेशन थी, एक था डाइफियोडोंट और एक था हिटेरोडोंट. हिटेरोडोंट मतलब हमारे जो टीथ होते हैं वो सारे ही टीथ सिमिलर होते नहीं हैं. हमारे पास अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टीथ हैं जिसे हम कहते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. So due to presence of 4 different types of teeth, our dentition is known as heterodont. It is known as heterodont. तो ये तीन चीजें हमने previous lecture में discuss की थी. There is nothing which you have to forget out of it. Everything, every little line you have to remember over here. So now moving on to the structure of teeth. हमने teeth की तो बात की थी, but let us now talk about an individual tooth structure. Okay? तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर जो देख सकते हो, एक्चुअली ये जो टूथ है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ऊपर इतने पार्ट को जो दिखता है हमें उसे कहा जाता है क्राउन. द मिडल पार्ट दैट इज नोन एज द नेक रीजन एंड द पार्ट ऑफ द टीथ विच इज नॉट विजिबल टू अस, जो हम नहीं देखते, जो यहाँ पे नीचे पूरा है, and this is known as the root. तो टीथ जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. Crown is the most visible part of the teeth, the white part of the teeth that we see. Then is the neck region जो gums से surrounded होता है, जिसके बाजू में gums होते हैं. और root मतलब जो पूरा पार्ट अंदर जॉबोन में embedded है उस पार्ट को क्या कहा जाता है? root कहा जाता है. तो ये जो टीथ का स्ट्रक्चर है उसमें
सबसे हार्डेस्ट जो रीजन होता है वो ये बाहर का रीजन होता है, इसे कहा जाता है इनेमल। इनेमल इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और इनेमल जो होता है वो इतना हार्ड होता है दैट इट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। तो सबसे ऊपर पार्ट है वो है इनेमल। नाउ below the enamel, the next region which you can observe, this region is known as the dentine. Dentine is also one of the hardest part, but not more harder than enamel. तो सबसे ऊपर होता है enamel और उसके बाद आता है dentine. अब dentine जो है, it is enclosing a cavity-like structure, and this yellow-colored cavity which you can observe, this whole region is known as the pulp कैविटी। इसे कहा जाता है पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी होती है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, राइट। देयर इज प्रेजेंस ऑफ नर्व्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज इन विच रीजन, इन द रीजन ऑफ द पल्प कैविटी। सो इट इज अ स्पॉन्जी लिटिल पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है। एंड then after this whole dentine is going to extend all around the pulp cavity. Now this part which supports the lower region, that is known as the periodontal ligaments. Periodontal ligaments. और यहाँ बाजू में जो है वो क्या होगा, आपका पूरा जॉबोन। मतलब क्योंकि टीथ जो है उनका अरेंजमेंट हम क्या कहते हैं, थिकोडोन। टीथ जो है वो पूरा एम्बेडेड है, तो ये जो साइड्स पे जो आप देख सकते हो दैट विल बी अ होल जॉबोन, ठीक है। मैक्सिले और मैंडिबल्स ये हमारे जॉबोन्स होते हैं। और यहाँ पे यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं, दैट ब्लड वेसल्स विल बी कंटिन्यूइंग थ्रू आउट टू द नेक्स्ट टीथ, एंड दैट विल बी सप्लाइंग द ब्लड टू द टीथ ऑल्सो। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो इनेमल पार्ट, उसके बाद आप देख सकते हो डेंटाइन, ठीक है। उसके बाद जो पूरा रीजन है दैट इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। सो हियर there are specialized types of cells which will be responsible for making dentine. ऐसे सेल्स होते हैं जो डेंटाइन बनाते हैं और सेल्स होते हैं जो एनेमल बनाते हैं। However, वो अब तो हार्ड पार्ट्स हो गए हैं, but there are cells responsible for it. तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। The dentine forming cells are known as dentine forming cells are odontoblasts. जो सेल्स डेंटाइन फॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है ओडोंटोब्लास्ट। एंड ओडोंटोब्लास्ट कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो पल्प कैविटी की पूरी लाइनिंग है, इस लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे ओडोंटोब्लास्ट। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द डेंटाइन। सेम वे इनेमल फॉर्मिंग सेल्स भी होते हैं, उन्हें कहते हैं एमिलोब्लास्ट। इनेमल फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड एमिलोब्लास्ट। तो कल हमने ये बात की थी दैट व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, राइट। आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर अगेन। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। चार तरह के टीथ होते हैं हमारे पास। इंसीजर जो सबसे आगे होते हैं, sharpened are the canines, premolars and the last one are the molars. So what is the number of teeth that are present in us? ठीक है, कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो adult human has 32 teeth. कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। पर टीथ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी होती है वो है डेंटल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? द डेंटल फॉर्मूला मतलब द नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन each half of upper jaw and lower jaw, ठीक है। The total number of teeth that are present in each half मतलब
जैसे कि हमारे पास 16 टीथ ऊपर है और 16 टीथ नीचे है, तो अगर उसका हाफ कंसिडर करें, द नंबर ऑफ टीथ दैट आर प्रेजेंट इन हाफ ऑफ ईच जॉ, अपर एज वेल एज लोअर, उसे क्या कहा जाता है? डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है, एंड दैट इज 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3. That indicates that this is what I, C, PM and M. मतलब हमारे पास ऊपर हाफ ऑफ द जॉ कंसिडर कर रहे हैं, नॉट फुल जॉ, ठीक है? तो हाफ ऑफ द जॉ में सबसे पहले जो टीथ है दो, वो कौन से होंगे? इंसीजर्स. ऊपर भी 2 इंसीजर्स है और नीचे भी 2 इंसीजर्स है. फिर हमारे पास एक कैनाइन है ऊपर और एक कैनाइन है नीचे, इसलिए 1 and 1. Then we have 2 premolars above in the upper jaw and 2 premolars in the lower jaw, and 3 of them are the molars at the end. तो एडल्ट जो होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 है, मतलब टोटली इंसीजर्स कितने होंगे? टोटल इंसीजर्स 8 होंगे, समझिए. पर दिस इज व्हाट इट इज इन द each half of the jaw. Okay, so you have to consider only half of the jaw. What are the number of teeth present? 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. So 2 1 2 3 upon 2 1 2 3 is the dental formula, that is I, C, P, M and M. तो ये डेंटल फॉर्मूला की डेफिनेशन आपको खास याद रखनी होगी कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102. तो 2102 मतलब क्या? तो 2 मतलब इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, पर 0 मतलब एट अप टू द एज ऑफ 6 years जो अब मिल्क टीथ होते हैं. तो मिल्क टीथ में कौन से नहीं प्रेजेंट होते? प्री मोलर्स आर एब्सेंट. और 3 मोलर्स की जगह पे सिर्फ कितने मोलर्स होते हैं? 2. किसकी बात कर रहे हैं हम? टेम्पररी टीथ जो होते हैं उनकी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज 2102. 2102 means 2 incisors are there, 1 canine is there, but they don't have any premolars, and instead of 3 molars they have only 2 molars. So that is in the case of the small children who are still having temporary teeth. अगर आगे बात करें तो अलग अलग एनिमल्स की डेंटल फॉर्मूला अलग होगी, क्योंकि उनका टीथ का अरेंजमेंट अलग होता है, ठीक है? So that was about the dental formula. Now let us talk about the next region, next part, that is the tongue. तो buccal cavity में along with the teeth the next structure present is the tongue. So tongue is a muscular structure. Tongue is a muscular structure and it is attached on posterior end and free on anterior end. मतलब जो टंग होती है हमारी वो पीछे से पोस्टीरियर साइड से अटैच्ड है, पर एंटीरियर साइड से क्या है? फ्री है, राइट? तो ऐसी जो टंग है मतलब पीछे कहाँ पे अटैच्ड होगी? तो पीछे हमारे पास यहाँ पे नेक में एक बोन होता है जिसे कहा जाता है हायोइड बोन. तो हमारी जो टंग है इट इज अल्टीमेटली अटैच्ड टू हायोइड बोन ऑन द पोस्टीरियर साइड, और एंटीरियर साइड पे क्या होता है? फ्री होता है. अब ये टंग के नीचे अगर आप देखोगे, राइट, यू विल बी एबल टू सी अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. सो वी विल मेंशन दैट द टंग इज अटैच्ड, टंग इज attached to the floor of buccal cavity by a flap like structure which is known as frenulum. What it is called? Frenulum. हमारी जो टंग है, पहला पॉइंट क्या कहा कि टंग पोस्टीरियर साइड से अटैच्ड है और एंटीरियर साइड से फ्री है. दूसरी चीज क्या की कि टंग जो है वो अगर आप ओपन करके देखोगे माउथ को तो आप देख सकते हो नीचे क्या है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है. इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फ्रेन्यूलम. दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेन्यूलम. और ये किसे कनेक्ट करता है? लोअर साइड ऑफ द टंग टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. The attachment of frenulum is very important because proper attachment of frenulum to the floor of buccal cavity
enables us to speak more clearly. अगर फ्रेन्यूलम improperly attached है, so there can be problem associated with the speaking in that child or in that infant. तो फ्रेन्यूलम जो है that is very very essential. It helps to position the tongue properly. Also, the upper surface of tongue has numerous projections which are known as papillae. What is the word for it? पैपिले. हमारी जो टंग है, अगर आप ओपन करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि टंग पे कई सारे छोटे छोटे रेड डॉट्स हैं, कई सारे छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स भी होते हैं. तो ये जो हल्का सा प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है पैपिले. एंड मेनी ऑफ दिस पैपिले दे कंटेन टेस्ट बड्स. व्हाट डू दे कंटेन? टेस्ट बड्स. ओके, तो यहाँ पे आपकी बुक में तो कौन से तरह के पैपिले होते हैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, but I'm just mentioning the names over here. Valate papillae, fungiform papillae, filiform papillae. ओके, हमारे पास अलग अलग तरह के पैपिले होते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म, वैलेट पैपिले. तो हर एक पैपिले जो है वो दिखने में भी अलग होते हैं. वैलेट पैपिले एकदम पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होते हैं. फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पूरे टंग पे होते हैं, बट फंजीफॉर्म आर स्लाइटली लार्जर एंड रेड इन कलर, whereas filiform are those which are white in color. तो ये पैपिले का इंपॉर्टेंस क्या है कि पैपिले एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, एंड टेस्ट बर्ड्स एनेबल अस टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसकी मदद से हमें अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं. दैट इज sour taste या sweet taste. Okay, so that different taste can be enabled by the presence of the taste buds. और taste buds कहाँ पे होते हैं? पैपिले में. So that was the structure of teeth and the tongue. Next we talk about the next part of the alimentary canal, that is pharynx and esophagus. So further into the alimentary canal, we have buccal cavity which opens into the next structure जिसे कहा जाता है pharynx. पर buccal cavity में कितनी चीजें याद रखनी है? एक तो tooth and its structure, dental formula, dentitions, ये याद रखना है. और secondly याद रखना है tongue which contains numerous papillae, and these papillae will be having the taste buds. Third thing present in the buccal cavity, though not mentioned in your textbook, is the presence of the palate. पैलेट जो होता है वो आप अगर आपकी टंग से ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ टच करो तो आप फील कर पाओगे दैट देयर इज अ हार्ड रीजन, राइट? अ बोनी रीजन यू कैन फील, एंड दैट इज नोन एज द हार्ड पैलेट. पर अगर आप पीछे की तरफ टच करोगे तो दैट रीजन विल बी क्वाइट सॉफ्ट, जिसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है. अगर आप आपका माउथ कंप्लीटली ओपन करके पीछे की तरफ देखो, यू विल बी एबल टू सी अ स्मॉल हैंगिंग यू शेप्ड स्ट्रक्चर. इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओव्यूला, विच इज नोन एज ओव्यूला. और ये ओव्यूला जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, whenever we have food and whenever we swallow our food, the ovula closes the nasal passage. मतलब हमारे नोज से जो पैसेज है उसको टेम्पररीली फॉर 1 or 2 seconds it will be closing it. Why closes it? So that it prevents the entry of food and water into your nasal passage. तो हमारे पास जो है ये ओव्यूला जो होता है that is used for closing the region of the nasopharynx or you can say nasal passage. तो ऐसा हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट है, और सॉफ्ट पैलेट में आप ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर जो देखोगे दैट इज नोन एज ओव्यूला. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रीजन दैट इज द फेरिंग्स. मतलब हमने माउथ की तो बात की, बकल कैविटी की बात की, बट हम आगे क्या मेंशन करते हैं? दैट बकल कैविटी लीड्स टू और ओपन्स इनटू, बकल कैविटी लीड्स टू the next structure which is called pharynx, and pharynx is a small passage common for food
एंड एयर। किसके लिए कॉमन है? फूड और एयर दोनों के लिए पैसेज कॉमन होता है। मतलब एक्चुअली जो फेरिंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेजोफेरिंग्स, वैसे इंटरनली कोई सेपरेशन नहीं है, बट अज्यूम करते हैं कि बकल कैविटी के पीछे जो है उसे कहा जाता है ओरोफेरिंग्स, ऊपर नोज के पीछे उसे कहा जाता है नेजोफेरिंग्स, और नीचे की तरफ कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स पोर्शन होता है वो एक कॉमन पैसेज है जहां से एयर भी एंटर होगी, क्योंकि नेजल पैसेज में से एयर भी जाएगी, और फूड जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एंटर। सो यू कैन सी दैट दिस स्पॉट इज अ प्लेस वेयर एयर इज ऑल्सो गोइंग टू मीट and the food is also going to meet. So this common junction is known as what? Pharynx. So pharynx is a very small passage, but this passage is common for both food as well as for the air. ठीक है? तो pharynx जो है, pharynx leads to 2 openings. pharynx से आगे जो है the path gets divided into 2 tubes, right? So one is known as the trachea, which is your windpipe, and the second one, the posterior one is known as the esophagus, and this esophagus is known as your food pipe. मतलब यहाँ पे डायग्राम में मैंने सिर्फ डायग्राम इसीलिए बनाया है so that you can see कि pharynx जो है वो कॉमन है। अब pharynx के बाद क्या आ रहा है? फेरिंग्स जो है उसके बाद 2 ओपनिंग है। एक जो है ये क्या है आगे की तरफ जो है दैट विल बी द ट्रैकिया, जो हमें यहाँ पे नहीं मेंशन करना है क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी नहीं। ठीक है, तो आगे की तरफ द वन ऑन द एंटीरियर साइड इज योर ट्रैकिया, मतलब पहले आता है लेरिंग्स और फिर आता है ट्रैकिया। ठीक है, और पीछे की तरफ ये जो ट्यूब है दिस विल बी नोन एज योर इसोफेगस, इसे कहा जाएगा इसोफेगस, विच इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स ओपन्स इनटू 2 थिंग्स, विंड पाइप भी ओपन होगी और फूड पाइप पे। तो फेरिंग्स में से फूड और वाटर जो है दैट विल गेट कंफ्यूज whether it has to enter into windpipe or into the food pipe. So here for protection the trachea is having its opening. The opening of trachea, the opening of trachea is known as glottis, is known as glottis, but this glottis is covered by a cartilaginous flap known as epiglottis during swallowing of the food। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं, देखिए समझिए ये क्या है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है? ट्रैकिया का, मतलब हमारी जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक उसका सबसे पहला ट्यूब है, तो ट्यूब का एक ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या कहेंगे हम? ग्लॉटिस कहेंगे। ठीक है, पर ये जो ग्लॉटिस होता है ये ग्लॉटिस कवर हो जाता है बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज व्हाट? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है वो उसे कवर कब करता है? जब भी हमें फूड स्वैलो करना होता है, तो व्हेन वी आर swallowing the food, the epiglottis will close the passage of glottis so that the food will not further enter. The food will not further enter into which passage? Windpipe, that is into the trachea. Otherwise क्या होगा कि food जो है वो pharynx तक तो आ गया है, then after it can enter into windpipe also, but no, it will not enter into windpipe just because of the epiglottis covers the glottis. So food has now only one passage to go, and what is that? It is the esophagus. इसीलिए food esophagus में enter हो जाएगा, right? तो यहाँ पे आगे की तरफ ट्रैकिया याद रखना है, उसका ओपनिंग ग्लॉटिस, and the cartilaginous flap which covers the glottis is called epiglottis. इसके बारे में अब हमें आगे डिस्कस नहीं करना है, that will be a part of respiratory system. Okay, so moving back,
कमिंग टू द स्ट्रक्चर दैट इज आफ्टर फेरिंग्स. तो फेरिंग्स के बाद क्या आता है? तो फेरिंग्स के बाद आता है द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इसोफेगस. सो नाउ मेंशनिंग esophagus. It is a long tubular passage. Esophagus जो होता है वो एक long tubular passage होता है and it crosses the region of neck. मतलब नेक में से ट्रैवल होके इट विल क्रॉस द रीजन ऑफ thorax, reaches the next region that is the diaphragm and sharply opens into the stomach. मतलब it is around 20 to 23 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब. इसोफेगस जो होता है वो अबाउट 20 to 23 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. अब ये पूरा ट्यूब कहां से एक्सटेंड हुआ है? फेरिंग से एक्सटेंड हुआ है. पर फेरिंग से आगे चल के ये ट्यूब कौन से रीजन्स को क्रॉस कर रहा है? नेक को, थोरैसिक कैविटी को. थोरैसिक कैविटी मतलब जहां पे हमारे लंग्स और हार्ट लोकेटेड है उसको क्रॉस करेगा और सारी चीजों के पीछे पोस्टीरियरली. ओके. और दो जो लंग्स है उनके बीच में से पीछे की तरफ से इट विल ट्रैवल एंड इट विल क्रॉस द डायफ्राम. राइट. डायफ्राम क्या होता है? हमारे जो लंग्स है उसके नीचे भी एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं डायफ्राम. और डायफ्राम को क्रॉस करके शार्पली इट ओपन्स इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज द स्टमक. तो इसोफेगस जो होता है उसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते. इसोफेगस का सिर्फ फंक्शन क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना. तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा एंड इट विल ओपन अप इनटू द stomach. Okay, so esophagus opens into the stomach. Now here there is presence of a valve or a sphincter. एक sphincter होता है, एक valve होता है किसके बीच में? esophagus और stomach के बीच में. So the valve or you can say sphincter present between the esophagus and stomach is known as cardiac sphincter. इसे क्या कहा जाता है? cardiac sphincter. मतलब cardiac sphincter is going to regulate the entry of food into the stomach. What it is going to regulate? Entry of food into your stomach. So cardiac sphincter is present as the first part. मतलब stomach जब open होगा तो सबसे पहले क्या होगा? sphincter. sphincter open होगा तो esophagus में से food जो है वो stomach में आ जाएगा. And once the food enters into the stomach, ये sphincter close हो जाता है. राइट. इन द केस ऑफ वॉमिटिंग और इन द केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन क्या होता है कि बैक फ्लो मतलब स्टमक में से वापस फूड जो है वो इसोफेगस में कई बार आ जाता है. इसलिए उनमें वॉमिटिंग के चांसेस जिसे कहते हैं रिजर्जिटेशन ऑफ फूड बहुत ही कॉमन होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे अबाउट स्टमक एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन्स. वी आर स्टिल डिस्कसिंग अपॉन द टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल. Carefully remember, prepare each and every part and function of each of the region in the alimentary canal.